Assalamu alaikum. I am Dr. Zeba Hissam, and today I'm here to give you a lecture about contraction and excitation of smooth muscle. We have completed the skeletal muscle contraction, neuromuscular transmission. Now we have to discuss about contraction and excitation of the smooth muscles. So let's see what is it and how it works, how it contracts. Smooth muscle, name of smooth muscle comes from the fact that this muscle tissue lacks the visible striations that are noticeable in the skeletal and the cardiac muscle. So we have seen that skeletal muscles have light and dark bands, but it does not occur in the smooth muscles, so it has got no striations. It is non-striated. Smooth muscle fibers contain numerous myofibrils that are composed of actin and myosin, just like skeletal muscle, except that they are arranged in more random fashion. They are not arranged in bundles of vesicles, or myofibrils are not arranged like in the skeletal muscle. Smooth muscle cells are spindle shaped, having a single nucleus which is centrally located. To smooth muscle cells are spindle shaped, they have got central nucleus like that. See this is a smooth muscle that is a spindle shaped, and the center there is a nucleus. And smooth muscles fibers, they are under involuntary control, and they are spindle shaped. Involuntary and skeletal muscles, they have got a voluntary control, isn't it? Now, what are the types of smooth muscle or the characteristic? The smooth muscle of each organ is distinctive from that of most other organs in several ways. They are physical dimension, number one. Number two, organization to the bundle or sheets. Number three, response to different type of stimuli. Number four, characteristics of innervation. And number five, their function. Now the types of smooth muscle, they are of two types. One is the multi-unit smooth muscle. The other is single unit or unitary smooth muscle. एक multi-unit smooth muscle है, दूसरे single unit या unitary smooth muscle भी कहते हैं उनको. Now see, multi-unit smooth muscle, it is composed of discrete, separate smooth muscle fibers. Each fiber can contract independently of the others. The outer surface of these fibers are covered by a mixture of collagen and glycoprotein that helps insulate the separate fibers from one another. Examples are ciliary muscle of the eye, iris muscle of the eye, and piloerector muscles. तो ये जो मसल्स हैं ये बिल्कुल सेपरेट इनके फाइबर्स होते हैं स्मूथ मसल के, और ईच इज कवर्ड बाय a mixture of collagen and glycoprotein, and they are insulated from the other. एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल तो दूसरा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन में. ठीक है, एक करेगा तो उसके साथ साथ दूसरा नहीं करेगा, तो ये मल्टी यूनिट हो गया. ये इस तरह से अरेंज है, मल्टी यूनिट हैं, रैंडम फैशन में अरेंज हैं ये, लेकिन सबकी जो मेम्ब्रेन है ना वो अलग है, इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर. तो अगर एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इधर से ट्रांसफ़र नहीं होगा दूसरे मसल फाइबर में, तो ये मल्टी यूनिट स्मूथ मसल हो गए. सिंगल यूनिट स्मूथ मसल उसको कहते हैं यूनिटरी स्मूथ मसल्स. अब नाम से जाहिर है कि ये यूनिटरी हैं, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साथ में दूसरे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए. अब देखते हैं क्या है. Mass of thousands of smooth muscle fibers that contract together as a single unit. The fibers are usually arranged in sheets or bundles. Their cell membrane are adherent to one another by many gap junctions through which ions can flow freely, and the action potential can travel from one fiber to the next and cause the smooth muscle fibers to contract together. तो जो जहाँ पे भी अगर गैप जंक्शंस होते हैं सेल्स के बीच में, तो गैप जंक्शंस इस मकसद के लिए होते हैं कि वहाँ से आयंस फ्रीली मूव कर लेंगे. फ्रीली मूव करेंगे तो अगर एक जगह एक्शन पोटेंशियल आएगा तो दूसरे में भी वो स्प्रेड हो जाएगा.
तो वो सब इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. ऑल्सो नोन एज सिंसीटियल स्मूथ मसल. अब जो जहाँ पे गैप जंक्शन होते हैं जिन सेल्स के बीच में और आयंस वहाँ से फ्रीली फ्लो कर सकता है, उनको कहते हैं सिंसीटियम. मिला के कहते हैं सिंसीटियम या सिंसीटियल स्मूथ मसल एंड विसरल स्मूथ मसल. एग्जाम्पल क्या है? वॉल्स ऑफ द गट में होते हैं, बाइल डक्ट्स, यूरेटर्स, यूट्रस एंड मैनी ब्लड वेसल्स. तो ये अगर एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन वहाँ से ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे फाइबर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शंस. अब ये देखें आप, these are the spindle shaped smooth muscle cells, centrally located nucleus. और यहाँ पे communication क्या है? These are the gap junctions through which ions can easily pass. अगर यहाँ पे action potential आया तो यहाँ gap junctions इधर आ जाएगा, इधर gap junctions से इधर आ जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरा जो है इसको फिर हम कहते हैं सिंसीटियम, सिंसीटियल मसल स्मूथ मसल फाइबर्स. और ये ऑटोनॉमिक न्यूरॉन वेरिकोसिटीज़ हैं. तो ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल से मतलब है कि एक में अगर आएगा एक्शन पोटेंशियल तो सब में एक्शन पोटेंशियल चल जाएगा, सब इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म इन स्मूथ मसल. अब स्केलेटल मसल में तो हमने बहुत तफसील से पढ़ लिया, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. ठीक है, केमिकल बेसिस क्या है? स्मूथ मसल कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन. एक्टिन एंड मायोसिन होता है लेकिन उस सूरत में नहीं होता जैसे पूरा फ्रेमवर्क था, जेड डिस्क थी और बीच में इंटरडिजिटेटिंग थे एक्टिन और मायोसिन, उस तरह से नहीं होता. इट डज नॉट कंटेन ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता इसमें. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम आयंस, उसमें भी हो रहा था, एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन. अब फर्क क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म में स्मूथ मसल के? वो तो केमिकल बेस हो गया कि कैल्शियम से ही हो रहा है. फिजिकल बेसिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ डेंस बॉडीज. डेंस बॉडीज का रोल बिल्कुल वैसे ही है जो जेड डिस्क का था. द एक्टिन फिलामेंट्स आर एंकर्ड टू द डेंस बॉडीज. उसमें जो है जेड डिस्क से निकल रहे थे दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट. आप अपने दिमाग में वो डायग्राम लेकर आए जो मैंने दिखाई थी आपको, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट और फिर जेड डिस्क थी, उसके साथ वो लगे हुए थे. अब इसमें क्या होता है? जेड डिस्क नहीं होती है, इसमें डेंस बॉडीज़ होती हैं और दोनों साइड पे डेंस बॉडीज़ के एक्टिन फिलामेंट्स अटैच होते हैं या एंकर्ड होते हैं. मायोसिन फिलामेंट्स है साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस. ये भी डिफरेंट है, उसमें प्रोजेक्शंस थी दोनों साइड पे एक ही तरफ, और इसमें साइड पोलर क्रॉस ब्रिजेस हैं. वो कैसे हैं? ब्रिजेस ऑन वन साइड हिंज इन वन डायरेक्शन एंड दोज ऑन द अदर साइड हिंज इन द अपोजिट डायरेक्शन. उसमें एक ही डायरेक्शन में थी स्केलेटल मसल है. इसमें क्या है कि एक साइड में उनकी डायरेक्शन दूसरे साइड में बिल्कुल अपोजिट है. दिस अलाउज मायोसिन टू पुल एन एक्टिन फिलामेंट इन वन डायरेक्शन ऑन वन साइड while simultaneously pulling another actin filament in the opposite direction on the other side. Smooth muscle cells can contract up to 80% of their length, 30% the skeletal muscle. अब इसमें जो ये मैकेनिज्म है ना साइड पोलर वाला क्रॉस ब्रिजेस का, उसकी वजह से स्मूथ मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट अप टू 80% ऑफ देयर लेंथ. ठीक है, 80% उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कम हो जाएगी, लेकिन स्केलेटल मसल की कितनी 30% ही कम होती है, क्योंकि उसमें वो क्रॉस ब्रिजेस ऐसे नहीं है साइड पोलर वाले. अब डायग्राम देखें, ये साइड पोलर की, साइड पोलर मायोसिन फिलामेंट्स विथ क्रॉस ब्रिजेस. अब यहाँ पे जो देखें ये मायोसिन फिलामेंट है और ये एक्टिन है. एक्टिन जो है वो कैसा है? ये वहाँ जेड डिस्क थी स्केलेटल मसल में, लेकिन यहाँ पे डेंस बॉडी है, डेंस बॉडी के साथ ये अटैच है. और ये मायोसिन फिलामेंट, इसके जो क्रॉस ब्रिजेस हैं आप देखें दोनों एक तरफ नहीं है जैसे स्केलेटल मसल में थे. एक क्रॉस ब्रिज एक साइड का अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म होगा तो फिर ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा और ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, और जब वो शॉर्टनिंग होती है तो वो 80% शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जो स्केलेटल मसल है वो सिर्फ 30% शॉर्ट होता है. तो ये एक्टिन फिलामेंट हो गया. और ये जेड डिस्क का काम क्या चीज़ करती है इसमें स्मूथ मसल में? डेंस बॉडी.
ठीक है. Now comparison of smooth and skeletal muscle contraction. अब सी contraction, slow cycling of myosin cross bridges heads have far less ATPase activity. अब क्या है कि इसमें ATPase activity कम है तो slow cycling होती है myosin cross bridges की. Low energy is required to sustain contraction, slow attachment and detachment cycling of cross bridges, and because only one molecule of ATP is required for each cycle. Slow onset of contraction, response to calcium ions for contraction is much slower. Greater force of contraction, prolonged period of attachment of cross bridges to actin. ये इसको कहते हैं हम लैच मैकेनिज्म. ठीक है, तो फ़र्क क्या है? स्लो एक्टिविटी है, स्लो एटीपीएज एक्टिविटी है, स्लो ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है इसमें, और बहुत देर तक अटैचमेंट रहती है क्रॉस ब्रिज की एक्टिन में, जिसको हम कहते हैं लैच मैकेनिज्म. अब व्हाट इज लैच मैकेनिज्म? Once a smooth muscle has developed full contraction, the amount of continuing excitation can be reduced to far less than the initial level. Yet the muscle maintains its full force of contraction. The energy consumed to maintain contraction is minuscule as compared to a sustained skeletal muscle contraction. Skeletal muscle contraction बहुत ज़्यादा energy चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्ट रखने के लिए, लेकिन जो ये लैच मैकेनिज्म है इसकी वजह से कम एनर्जी चाहिए होती है और फुल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उसमें. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट कैन मेंटेन प्रोलॉन्ग टोनिक कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल फॉर आवर्स विद लिटिल यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, क्योंकि हमारी गट में होते हैं और गट में जो है वो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है बहुत ज़्यादा देर तक के लिए, तो वो इस वजह से वहाँ पे स्मूथ मसल अल्लाह मियाँ ने बनाए हैं, ताकि वो लैच मैकेनिज्म उसमें है. इनवॉलंटरी कंट्रोल हमें नहीं पता हमारी गट में अभी क्या हो रहा होगा. अच्छा, रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाय कैल्शियम आयंस. The initiating stimulus for smooth muscle contraction is the increase in the intracellular calcium ions. यानी कैल्शियम आयंस ही इंट्रासेलुलर जब आएंगे इनिशिएटिंग स्टिमुलस होगा ये. The increase can be caused by nerve stimulation, hormonal stimulation, stretch of the fiber, और even change the chemical environment of the fiber. अब इसमें देखें कितनी सारी चीज़ें हैं. या तो नर्व स्टिमुलेशन हुई है, अगर नर्व स्टिमुलेशन नहीं हुई तो हार्मोनल स्टिमुलेशन हुई है, वो नहीं हुई है तो स्ट्रेच हो गया फाइबर, और वो नहीं है तो इवन चेंज द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द फाइबर से भी कॉन्ट्रैक्शन या कैल्शियम अंदर जा सकता है. In place of troponin, smooth muscle contains a large amount of another regulatory protein which is known as calmodulin. तो इसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसकी जगह क्या है? अनदर रेगुलेटरी प्रोटीन जिसे कहते हैं कैलमोड्यूलिन. कैलमोड्यूलिन इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन बाय एक्टिवेटिंग द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस. उसमें ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, स्केलेटल मसल में, और इसमें calmodulin है. Combination of calcium ions with calmodulin. Calcium ions bind with calmodulin. The calcium calmodulin joins with and activate myosin light chain kinase. A phosphorylating enzyme है, myosin light chain kinase है उसका नाम. One of the light chains of each myosin head called the regulatory chain becomes phosphorylated. Now the head has the capability of binding repetitively with the actin filament causing contraction. When this chain is not phosphorylated, the attachment-detachment cycling of the myosin head with the actin filament does not occur. Now see this diagram. Outside of the cell, this is inside of the cell, calcium is entering inside the cell, and not only from the outside but also from the sarcoplasmic reticulum calcium is released, and this calcium when binds with the calmodulin, calcium plus calmodulin increases the क्या था इसका नाम, myosin light chain kinase. Yes, so this activate myosin light chain kinase
and this causes myosin light chain phosphorylation और फिर हो जाती है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से. अगर इनएक्टिवेट हो जाए मायोसिन लाइट चेन काइनेज तो मायोसिन लाइट चेन डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा और उससे रिलैक्सेशन हो जाएगी और ये फॉस्फेटेज है. ठीक है. Cessation of contraction, myosin phosphatase. The contraction ceases through another enzyme called myosin phosphatase, which is located in the fluid of the smooth muscle cells. It splits the phosphate from regulatory light chain and causes relaxation. अब ये यहाँ पे था ना, इस डायग्राम में देखें, इधर फॉस्फेटेज भी पड़ा हुआ है. जैसे ही वो स्प्लिट होगा रिलैक्सेशन हो जाएगी डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्मूथ मसल वो कैसा होता है? वो भी अलग होता है स्केलेटल मसल से. द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स दैट इनर्वेट स्मूथ मसल डिफ्यूज ऑन टॉप ऑफ अ शीट ऑफ मसल फाइबर्स. These fibers do not make direct contact with the smooth muscle fiber, but form diffuse junctions that secrete their transmitter substance, which diffuse into the cells. The fine terminal axons have multiple varicosities distributed along their axis. In the varicosities are the vesicles, which may contain acetylcholine or norepinephrine. It is another neurotransmitter. Here you see, these are visceral smooth muscle. They are gap junctions through which action potential can pass from one cell to another. And you can see these spindle shaped smooth muscles, they are arranged in sheets, and the nerve has got varicosities and it is supplying to all the individual cells together. With the gap junctions, they can have action potential to traverse in whole of the sheet. Multi-unit हो गए ये syncytial smooth muscle cells. Excitatory and inhibitory transmitter. Acetylcholine and norepinephrine can be excitatory or inhibitory depending on the receptor protein it binds with on the surface of the muscle cells. अब यहाँ पे जो receptor proteins हैं वो तय करती हैं कि एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा जो भी एसिटाइलकोलिन या नॉरेपिनेफ्रिन आके उसमें अटैच हो रहा है. सम ऑफ द रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स whereas other are inhibitory receptors. तो अगर inhibitory receptor में जाके एसिटाइलकोलिन भी लग जाएगा तो inhibitory हो जाएगा, वो excite नहीं करेगा उसको. Membrane potentials and action potential in the unitary smooth muscles. In normal resting state, the membrane potential is 50 to minus 60 millivolt. The action potential of visceral smooth muscle occur in one or two forms. Number one is spike potential. Number two, action potential with plateaus. तो कुछ तो स्पाइक पोटेंशियल्स होते हैं, कुछ एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटू होते हैं. स्पाइक पोटेंशियल क्या है? द ड्यूरेशन ऑफ दिस type of action potential is 10 to 50 milliseconds. Such action potential can be elicited by electrical stimulation, action of hormone on the smooth muscle, action of transmitter substance from the nerve fiber, by stretch simply, or as a result of spontaneous generation in the muscle fiber itself. अब you see this is the स्पाइक पोटेंशियल. सीधा सीधा एक स्पाइक आया, यानी कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -60, ये फिर यहाँ पे थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया 40 और ये सीधा आके -20 और प्लस इसके बाद 0 के बाद हो जाएगा, तो ये फ़ौरन वापस आ जाएगा विद इन मिली सेकेंड्स. ठीक है, दिस इज स्पाइक पोटेंशियल. अब दूसरा देख लेते हैं, एक्शन पोटेंशियल विद प्लेटू. The onset of this action potential is similar to that of the typical spike potential. But instead of rapid repolarization of the membrane, the repolarization is delayed to several hundred to as much as 1000 milliseconds. The importance of this plateau is that it can account for the prolonged contraction that occurs in some types of smooth muscles such as the ureter, uterus and some types of vascular smooth muscle. तो इसमें क्या होगा, स्पाइक पोटेंशियल में क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड
डीपोलराइजेशन और फॉरन रीपोलराइजेशन एक स्पाइक के बाद, ठीक है, और वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। इसमें क्या होता है कि पीछे डायग्राम देखें, इसमें बिल्कुल डीपोलराइजेशन तो वैसे ही होती है जो स्पाइक पोटेंशियल में थी। ये देखें -50 से ही हुआ, थ्रेशोल्ड क्रॉस किया, डीपोलराइजेशन हुई। अब स्पाइक की तरह ये नीचे नहीं आएगा, अब क्या होगा, डिले हो जाएगी रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन डिले होगी तो यहाँ पे एक प्लेटू बन जाएगा। प्लेटू की वजह से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर इसकी स्लोली रिटर्न होगा रीपोलराइजेशन की तरफ और फिर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस of calcium channels in smooth muscle. The smooth muscle cell membrane has far more voltage gated calcium channels and few voltage gated sodium channels. So the flow of calcium ions to the interior of the fiber is mainly responsible for the action potential. The calcium channels open many times more slowly than the sodium channels, and they also remain open much longer. This is responsible for the prolonged plateau action, ठीक है। तो स्लो कैल्शियम चैनल्स स्लोली ओपन भी होते हैं, स्लोली क्लोज होते हैं, इसलिए रीपोलराइजेशन जो है वो डिले हो जाती है और इसी की वजह से उसमें प्लेटू बन जाता है। स्लो वेव पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल अराइज विद इन द स्मूथ मसल सेल्स देमसेल्फ विदाउट एन एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस। अब स्मूथ मसल्स में एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि एक्शन पोटेंशियल खुद ब खुद भी जनरेट हो सकते हैं विदाउट एनी एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस के। उसको स्लो वेव पोटेंशियल कहते हैं। द स्लो वेव पोटेंशियल इटसेल्फ इज नॉट द एक्शन पोटेंशियल। व्हेन द स्लो वेव्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ दे कैन इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल। व्हेन द पीक ऑफ द स्लो वेव रीचेस फ्रॉम -60 to -35 दैट इज द थ्रेशोल्ड लेवल। तो स्लो वेव्स ऑटोमेटिक वेव्स होती हैं जो एक्चुअली एक्शन पोटेंशियल नहीं होती हैं, लेकिन वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती हैं अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें तो। स्लो वेव पोटेंशियल। द रिपीटेटिव consequences of action potential elicit rhythmical contraction of the smooth muscle mass, therefore the slow waves are called pacemaker waves, ठीक है। पेस मेकर वेव्स इसलिए कह रहे हैं कि कोई विदाउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस के वो खुद ब खुद वहाँ से जनरेट हो रही हैं। जब अब ये हम कार्डियक मसल पढ़ेंगे तो कार्डियक मसल की एक क्वालिटी होती है कि वहाँ पे पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक जनरेशन वहाँ से होती रहती है चाहे उसको स्टिमुलस मिले या नहीं मिले। तो इसी तरह ये स्लो वेव पोटेंशियल भी जो है ऑटोमेटिक हैं, इसलिए उनको पेस मेकर वेव्स कहते हैं। और अगर वो सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएं तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती हैं ये स्लो वेव्स। डीपोलराइजेशन ऑफ द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। अब ये कैसे है, द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ मल्टी यूनिट स्मूथ मसल लाइक आइरिस और पाइलोरेक्टल मसल दे कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू नर्व स्टिमुलाई। The nerve endings secrete acetylcholine and norepinephrine that cause depolarization of the membrane and elicit contraction. Depolarization of multi-unit smooth muscle. Action potential does not develop because the fibers are too small. Instead, there is local depolarization called junctional potential caused by transmitter substance that spread electronically over the entire fiber and is all that is needed to cause muscle contraction. Oh, that's all. So we have finished with smooth muscle contraction types and mechanism and everything, and I hope you have listened it carefully and have understood. You should go through your books and read it again, or you can again listen to it if you have time, right? Thank you. Bye bye.